Assalamu alaikum, grade 10th. I hope you all are fine. Today I am going to tell you something about your book. That these are the unit titles. We have done till unit number 5, the rain. We have completed this lesson. First of all, there is the text in the book. Then there is vocabulary. Vocabulary means your qill, the difficult words, their meanings you need to write on your notebook. Okay, and you also you will write the summary of the poems. Like there are 2 poems, Try Again and The Rain. Okay, you will write the summary, and then you will write the question and answers. Like these reading skills, it's just like comprehension. You have the text, and from the text there are some MCQs, there are some filling the blanks, there are some question and answers, so you will write on the notebooks. Now we are going to start the grammar portion. Okay, from every unit we will start do the grammar work. Today we are going to do for unit number 1, Hazrat Muhammad, an embodiment of justice. Okay, so let us start. From here, page number is mentioned on the, it's 8. Grammar. Concrete nouns, abstract nouns. Before that we must know that what is a noun. Noun is the name of a person, place, things, feelings, whatever. Okay, the name of anything, that is noun. Now concrete noun. What is concrete noun? Concrete noun is that of which we can identify that with the help of our 5 senses, like smell, touch, and hearing, and whatever the senses we have, 5 senses we have. So वो चीज़ें जिनको हम अपनी senses के साथ identify कर सकते हैं, we can see them, we can hear them, we can touch them. Okay, so they are, we can taste them. They are concrete nouns. Like the revenge of the father cannot be taken on his son. तो father and son underline है, तो father क्या है, इनको भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और son जो है उनको भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, touch कर सकते हैं. So these are both are concrete nouns. Now what are abstract nouns? These are the nouns which we cannot touch, but we can these are the the qualities of something, someone's. These are the states, किस चीज़ की हालत, किस चीज़ की ideas, feelings. Okay, so we cannot touch it, but they are working as a noun. He decided their case. उनका फैसला, उसने उनका फैसला किया विद इक्विटी एंड जस्टिस. इक्विटी भी यहाँ पर नाउन के तौर पे आ रहा है, इंसाफ और इक्विटी के साथ, मसावात के साथ. ठीक है, बिल्कुल इक्वलिटी के साथ किया है. तो इक्विटी एंड जस्टिस, इक्विटी को भी हम टच नहीं कर सकते, बट दिस इज़ अ स्टेट. जस्टिस, इंसाफ, क्वालिटी, हम इसको टच नहीं कर सकते, बट दे बोथ आर नाउन एंड दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, now you will do in the part A, identify whether each underlined word is a concrete or an abstract noun. So there is a effort, studies, both are abstract, we cannot touch it. And here are some others you can do by yourself. The next one is article. Article is a, an or the. An आपको पता है कि हम किसके साथ लगाते हैं, it will come before a single and the things which are having a sound, pronunciation जब उनकी करते हैं तो a का sound आता है. Just like is there any example for that? In a week, in here there is not an example. Like orange, जो vowels होते हैं a, ई, आई, ओ, यू, इनके साथ, इनसे पहले जो हैं, और लेकिन वो सिंगल वर्ड होना चाहिए. लाइक ऑरेंज है तो एन आएगा, अगर ऑरेंजेस है तो एन नहीं आएगा. ओके, इसी तरह से वो लफ्ज़ जिनको हम अ से स्टार्ट, लाइक ऑनरेबल,
ऑनरेबल है तो एच से स्टार्ट होता है, लेकिन उसकी जो वॉइस है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो अ से, ओ का साउंड करता है, तो हम उसको ही इज़ एन ऑनरेबल मैन कहेंगे. ऑलराइट, नाउ ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन. ही आस्क्ड मी वेरी हार्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन सिंगल है, सिंगल के लिए हम ए यूज़ करेंगे, ठीक है, या द यूज़ करेंगे या एन यूज़ करेंगे सिंगल चीज़ों के लिए. आर्टिकल जो है वो हमेशा सिंगल के लिए लगता है, ठीक है. नाउ व्हाट विल कम हियर, ही आस्क्ड मी वेरी हार्ड क्वेश्चन. उसने मेरे से एक मुश्किल सवाल पूछा. ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन. ओके, डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज वेरी इजी. ये जनरल सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसमें उस क्वेश्चन को जो हाईलाइट कर दिया है. जब किसी की स्पेसिफिसिटी आ जाती है कि दैट क्वेश्चन, तो उसको हम द लगाते हैं. द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी. हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ. अब माई स्कार्फ है, पोजेसिवनेस आ रही है, तो ए एंड द में से कुछ नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि अगर नो आर्टिकल है तो आपने बताना है देयर इज़ नो आर्टिकल. ओके, सो यू विल नॉट मेंशन एनीथिंग हियर, यू विल पुट अ डैश और यू कैन पुट अ क्रॉस ओवर हियर. कुड यू प्लीज़ पास मी डैश सॉल्ट. अब सॉल्ट जो है उसके लिए हम आ तो यूज़ कर नहीं सकते. आ सॉल्ट, ये जो है ये कलेक्टिव नाउन है ना. सो कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट. Is there dash good restaurant around here? Is there a good restaurant around here? Okay. Dash restaurant that my friend own is very good. The अब यहाँ पर द आएगा और यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये अब उस स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की बात हो रही है जो फ्रेंड का है, ठीक है. आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स. अब फ्रेंड्स आ गया, फ्रेंड्स तो मैनी होते हैं, तो इसमें ना आ आएगा, ना द आएगा, ना एन आएगा. ओके, इट विल नॉट हैव एनी आर्टिकल. डैश यूएई इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री. स्पेसिफिक कर दिया किसी कंट्री के साथ, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, वट एवर द कंट्री, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं बेटे उनके साथ आता है द. ओके, द यूएई इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री. आई सी यू इन डैश वीक. आई विल सी यू इन अ वीक. अगर स्पेसिफिक होता कि मैं तुम्हें उस हफ्ते मिलूंगा, वो कह रहे हैं मैं एक हफ्ते में तुम्हें मिलूंगा, मैं एक हफ्ते में तुम्हें देखूंगा. आई विल सी यू इन अ वीक. I am on dash vacation until Monday. I am on the vacation until Monday. कि मैं मंडे तक vacations पर हूँ. Now what is noun phrase? Noun phrase बेटे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. होता तो नाउन ही है, लेकिन जब उस नाउन के साथ कुछ उसकी क्वालिटीज़, कुछ इस तरह से वर्ड जुड़ जाते हैं, वो नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. लाइक जैसे कि है ही इज़ इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट क्या होगा, उसकी एडजेक्टिव हो जाएगा, बट ही इज़ एन इंटेलिजेंट बिजनेसमैन. तो इंटेलिजेंट बिजनेसमैन वो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, एक नाउन फ्रेज बना देंगे. लाइक एज अ यंग ट्रेडर. ट्रेडर क्या है, नाउन है, लेकिन अ यंग ट्रेडर जब लग गया दैट इज़ अ नाउन फ्रेज. ओके, ही अर्न रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन. जस्ट होता है जो इंसाफ करता है, ठीक है. सो एन ऑनेस्ट. अब ये देखिए एन वाली एग्जांपल भी आ गई. ऑनेस्ट है तो इट विल कम एन ओवर हियर. ओके, एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन. नाउ these are the underline the noun phrases in the following sentences. You will do underline on the book. Okay, till here we have done inshallah the past indefinite and past continuous tense, and the punctuation we will do in our next lesson. Okay, till then, Allah Hafiz.